वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए। चिनारों के साए में आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक हम आप सभी से है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जहर की जो धीरे धीरे हमारी नौजवान नस्ल को खत्म करने जा रहा है। आज हम बात करेंगे ड्रग्स पे और ड्रग एब्यूज पे। ये सिर्फ नशा नहीं, एक साइलेंट वार है, एक ऐसी जंग जो बंदूक से नहीं, सिरिंज और पाउडर से लड़ी जा रही है। कश्मीर के नौजवान टारगेट बन चुके हैं और इसके पीछे है एक डेंजरस नेक्सस, ड्रग्स, टेरर और क्रॉस बॉर्डर एजेंडा। We are all concerned and pained to see the menace which we all are facing. Recently, the Standing Committee on Social Justice and Empowerment submitted its report to both houses of the Parliament, where it was declared that around 13.65 lakh individuals in UT are affected with drug abuse. And mostly they use heroin through injectable mode. So these figures which have been reported from JKUT, they are highest in India. भारत ने इस खतरे को पहचाना और शुरू हुआ एक नेशन वाइड मिशन, नशा मुक्त भारत अभियान। This Nasha Mukti Abhiyan is going on not only in J&K but pan the country. And why it has been done is that it is a real problem that we are facing. We're talking about the kind of addiction that destroys lives. I think the peer group pressure, which is very, very important to conform to a peer group. Unemployment is a huge problem. Poverty definitely is an issue. Escapism is another issue. Availability of drugs is an issue. Then obviously porous borders, which we are trying to check. Indoctrination is also another issue. एक फ्रेंड को देखा था एक बार करते हुए तो फिर खुद स्टार्ट किया। ऐसे ही फिर घूमने गए थे किसी जगह पे तो फिर ऐसे ही पहले स्टार्ट सिगरेट से ही किया था, सिगरेट एंड फिर वीड भी पी थी, फिर उसके बाद हेरोइन एडिक्ट। जम्मू कश्मीर में इस कैंपेन ने लाखों लोगों तक पहुंच बनाई, यूथ, विमेन और फैमिलीज तक। According to one of the reports from IMHANS, 3 out of 100 adults are addicted. 1 in every 4 user is unemployed. And as mostly they are using IV modes, so it has also increased the incidence of infections like hepatitis B, C, and HIV. As the challenges associated, they are not only health risks, but they are social, psychological, and economic burdens. सिर्फ अवेयरनेस नहीं, रिहेबिलिटेशन भी। हजारों लोगों का ट्रीटमेंट किया गया और हेल्पलाइन सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया गया। Government is doing a lot of activities. The Social Justice and Empowerment Ministry runs a program called NAP DDD, basically which is about a national program for the drug addiction. The idea is that every district should have a drug de-addiction center. We also have what is called ATFs, the additional treatment facilities, which are created in various institutions. There are so many heroes that right now we have in our center also who have been able to quit it, but it takes a lot of efforts from the patient, from the families, and from ours also. There are medicines available which can make them get well very soon, but it's only hope for us is that they come forward and get treated. 2026 में एक एग्रेसिव 100 डेज कैंपेन लॉन्च हुआ
आज अपने 100 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम पहली बार जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, जिसका मेन मकसद ड्रग्स के किंगपिन को पकड़ने से लेकर जम्मू कश्मीर के वो नागरिक, वो युवा जो नशे में किसी तरह से लिप्त हो चुके हैं, उनको यहाँ पर नशा मुक्त करवाना है। इसके अलावा पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से जड़ से नशे को खत्म किया जा सके, उसके लिए प्रयास करना है। और ये 100 दिन का कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के हर एक कोने में किया जाएगा। टारगेट क्लियर है, पाकिस्तान से आने वाली ड्रग सप्लाई को तोड़ना और पेडलर्स को सख्त सजा देना। एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स को एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पता चला जो कि बॉर्डर क्रॉस करवा के हिंदुस्तान की तरफ ड्रग्स पुश करते थे, और भारत की तरफ से कुछ लोग ऐसे जो उस ड्रग को फिर आगे फर्दर सप्लाई करते थे। पैकेट हीरोइन के जब्त हुए हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 14 करोड़ के लगभग है। हमें पूरी उम्मीद है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में फर्दर चेन्स निकलेंगी और लोग जो इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा हैं बड़ी जल्दी गिरफ्तार होंगे। हमें पाकिस्तान की तरफ से सप्लाई करने वाले आदमी के कुछ डिटेल्स सामने आए हैं। कोशिश करेंगे हम एक्स्ट्राडिशन के तौर पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, लेटर रिगोटरी के प्रोसेसेस को यूज़ करके कोशिश करेंगे उनका भी इंडिया की तरफ प्रत्यर्पण का किसी तरह से व्यवस्था करवाएं। इसमें अगर इंटरपोल की अगर ज़रूरत पड़ेगी सहायता की, वो भी हम लेंगे। रियलिटी है जिसको जितना उससे लड़ा जाए कम है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेटवर्क है। ड्रग्स हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से आ रही हैं, बहुत सारी की सारी पाकिस्तान आर्मी ISI कंट्रोल करती है, तंजीमों के थ्रू स्मगल कराती है, स्मगलर्स के थ्रू स्मगल कराती है। तो ये जो चुनौती है, पुलिस तो उसको लड़ेगी इससे और लड़ती रहेगी आखिरी दम तक। सोसाइटी को आगे बढ़ के आना है। तो ड्रग्स की तो लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है बिकॉज ये सोशल ईवल है, और सोशल ईवल के ऐसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ कोई हो नहीं सकती। आई वुड रेट ड्रग्स एंड द फाइट अगेंस्ट ड्रग्स on an equal pedestal in terms of fight against terrorism. कश्मीर जो सूफी ट्रेडिशंस और स्पिरिचुअलिटी का मरकज था, आज ड्रग क्राइसिस का सामना कर रहा है। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि वैली धीरे धीरे ड्रग हब में तब्दील हो रही है। If you would ask me the question 10 years down the line, I would say यहाँ ड्रग अब्यूज है, लेकिन ज्यादातर मेडिसिनल ओपियोइड्स का है, ज्यादातर कैनबिस, चर्च का है, जो यहाँ लोकली ग्रो हो जाता है, वाइल्ड होता है। बट पिछले 8 साल से 7-8 साल से, राइट, एग्जैक्टली यू कैन से 2016 ऑनवर्ड्स, वी आर सीइंग अ डिफरेंट ट्रेंड। वी आर सीइंग कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो अब आ रहे हैं, दे आर ऑल हेरोइन एडिक्ट्स। There has been definitely an alarming increase in the number of individuals who are resorting to these drugs of addiction. And there are multiple factors which are actually responsible for it. The availability of the substances, literally at your doorstep. Peer group pressure, 3 decades of conflict which has really traumatized people, given them a lot of distress, and this distress obviously results in shortcuts in young population who don't have very good, very mature coping mechanisms. Although fortunately for last few years I would say things have started stabilizing. पुलिस ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं। हर दिन पेडलर्स अरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह सिर्फ एडिक्शन नहीं, ये सोशल ब्रेकडाउन का सिग्नल है। क्राइम, फैमिली कोलैप्स और लॉस्ट जनरेशन। जो ही वो दवाइयां लेते थे वो मारना पीटना शुरू कर देते थे। तो फिर मैंने पापा से बात की। मैंने पापा को कहा ये ऐसे ऐसे करते हैं, आप इनको समझाओ, अगर ये सुधर जाते हैं तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। अब सवाल ये है कि ये ड्रग्स आ कहां से रहे हैं? हर एनकाउंटर साइट पे जहां टेररिस्ट मारे जाते थे, फेक करेंसी मिलती थी और ड्रग
ड्रग्स के पैकेट मिलते थे हर एक टेररिस्ट के साथ। उनका एक प्लान है कि यूथ को, भारत के यूथ को और खासकर जम्मू कश्मीर और पंजाब के यूथ को बिल्कुल ड्रग एडिक्ट बनाया जाए ताकि वो उनके इशारों पे नाचें। ड्रग्स को ड्रॉप करके नार्को टेररिज्म से थ्रू जो पैसा जनरेट किया जाए उसके थ्रू हथियार खरीदे जाए और ये टेररिज्म चलाया जाए। इनफैक्ट OGW ज़्यादा इसमें यूज होते हैं, वो ही प्राइमरीली ये धंधा करते हैं ताकि उनके थ्रू ये पैसा जनरेट किया जाए और टेररिज्म में उसकी मदद मिले। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर है और पाकिस्तान एक ट्रांजिट रूट और नेटवर्क हब। यहां से शुरू होता है नार्को टेररिज्म, जहां ड्रग्स का पैसा टेरर फंडिंग में कन्वर्ट किया जाता है। Pakistan-based terror groups are now pumping narcotics into India, resulting in a dramatic rise in heroin consumption in Jammu and Kashmir. Now, the network infiltrated deep and is used to fund terror and extremist insurgents. The aim of the group is to create radicalized addicts and use them as sleeper cells. The BSF shot dead 3 Pakistani terrorists trying to infiltrate across the international border. More shocking was the recovery. 36 kilograms of heroin packed in 1 kilogram bags worth 180 crore in the international market. 79 kilograms of drugs recovered. A rising proportion of the haul is heroin. It's the reign of narco terror in the valley. Recent crackdowns ने नार्को टेरर मॉड्यूल्स एक्सपोज किए, ड्रग्स और वेपन्स एक साथ रिकवर हुए। हमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी ड्रग्स के गाड़ी की, जिसके बाद हमने एक स्पेशल नाका जो है वो इस्टेब्लिश किया था एट रेलवे चौक बानिहाल। उसके बाद वहाँ पे हमें एक इनोवा गाड़ी को हमने इंटरसेप्ट किया जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है HR2W4925। ये कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रही थी और जब इसको इंटरसेप्ट किया और इसकी सर्च करी तो इसमें 30 किलो के करीब कोकेन जैसा दिखने वाला सब्सटेंस पाया गया, जिसकी इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में कम से कम 300 करोड़ की वैल्यू आंकी जा रही है और 2 लोगों को इसके अंदर हमने अरेस्ट किया है। पाकिस्तान के लिए सिर्फ स्मगलिंग नहीं, स्ट्रेटजी है। ऑब्जेक्टिव क्लियर है, यूथ को एडिक्शन में धकेलना, सोसाइटी को वीकन करना और टेरर फंडिंग जनरेट करना। हमारे हैवरसैक में एक काले रंग का एक लिफाफा कुछ पाउच सा था। बॉर्डर क्रॉस किया तो 2 दिन बाद एक आदमी हमारे पास आया, उसने कहा कि आपके पास एक लिफाफा है, वो हमको दे दो। हमने वो लिफाफा उसको दे दिया। हमने फिर जब आपस में बात की तो कहा कि ये शायद वो RDX के कुछ लोग जो करते थे, बनाते थे माइन वगैरह, तो उनके काम आता है। लेकिन फिर कुछ शक हो गया हमको कि बीच में लड़के आते रहे, उनके पास ये था, वो ये पाउच होता था उनके पास, किसी के पास 1, किसी के पास 2। तो एक दिन हमने जब ये खोला तो इसमें कुछ सफ़ेद रंग का कुछ पाउडर सा था, उसमें अजीब सी स्मेल थी। तो फिर एक आदमी को हमने दिखाया, उसने कहा नहीं ये वो बारूद वगैरह RDX नहीं है, इसमें कुछ और ही चीज़ है। फिर हमने किसी और आदमी से पूछा कि ये क्या है, उसने बताया नहीं ये होता है, वो हेरोइन होता है या कुछ ड्रग होता है कि जो वो हम देते थे नाजिम को, फिर पता नहीं वो क्या करता था, वो किसको देता था। जम्मू कश्मीर की ऐसी बदकिस्मती है कि, और हमारी कंट्री की बदकिस्मती, हमारा हमसाया जो है वो खुद तो नालायक है ही, वो अपने घर परिवार को तो नहीं देख रहा है, लेकिन उसकी नज़र है कि हमारे यूथ और नौजवान को पहले 32 साल में उसने एक माहौल में हमें इन्वॉल्व किया, अब दूसरे माहौल में हमारे बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहता है। अथॉरिटीज के मुताबिक डेलिब्रेट एफर्ट्स किए जा रहे हैं कश्मीरी यूथ को एडिक्शन की तरफ पुश करने के लिए। Eventually post 16 I found out that yes, there's drug addiction, and if then it was 10%, now it's 100%. So the graph has not even gone down or not stayed where it is. It's gone up and very rapidly. And regarding the age group you asked me, right now we have the youngest patient is 14 and the oldest here right now admitted is 60 years. But if you go with the graph outside, it's like 7 to 70. So there's no limited youth towards this drug addiction. Everyone we see around is involved because there's different drugs available. ये एसिमेट्रिक वारफेयर का एक नया रूप है,
जहां बुलेट की जगह ब्राउन शुगर और हेरोइन यूज हो रहा है। In 2016-17, there was a huge surge of heroin, and the study we did with All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, on this national pattern of substance abuse all over India, and that was an alarming point for all of us. That showed that we had a huge number of patients who are actually heroin dependent in Jammu and Kashmir, whole of Jammu and Kashmir. इंडिया ने इस चैलेंज को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं समझा, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया। मल्टीप्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई। जन भागीदारी यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन इस फाइट का सबसे बड़ा वेपन है। Are we a failed society? So this is the aim for the session, and this is the answer we are trying to look for. A comprehensive approach is the joint goal for all of us to respond at our own levels, to educate our students and youth about the fearful slavery, the dependence and the remorse which comes to their life after momentary rewards of drug abuse and high feels. Needs a multiple stakeholder effort, and as they say that charity has to start from home, then you have other departments like you said about law enforcement agencies. There is a big role of religious leaders who can discuss about it, talk about it in their, we have weekly Friday congregations happening, and people, they talk about social issues. I think this is the big social issue that is right now creeping up and that has already reached an alarming level. कि माशरे के अंदर इस तरह की चीज़ें इंसान को और माशरों को बर्बाद करती हैं, इनसे भरपूर हिफाजत का पूरा इंतज़ाम करना चाहिए। बयानात के ज़रिए से, लिखने के ज़रिए से, मतलब जितना भी हो सके, सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से जितना हो सके, इसकी जो कबाहतें हैं उनको सामने लाया जाए, इसके नुकसानात को सामने लाया जाए। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह माशरे के अंदर इस बुराई से हम बच सकते हैं। रिलीजियस लीडर्स, स्कूल्स, एनजीओज सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है नशे के खात्मे के खिलाफ मुहिम में। कश्मीर का फ्यूचर इसके यूथ के हाथ में है और यूथ को बचाना एक नेशनल ड्यूटी है। There is a big thing in living a very honorable, very healthy life rather than a shortcut towards a substance, towards any drug of addiction, which actually may give a simple or a transient sort of or a very shortcut and a temporary relief for some time, but in the long run it will devastate you, it will devastate your family, it will devastate our society, and at large it will devastate our Jammu and Kashmir and India as a nation. नशे के खिलाफ ये जंग सिर्फ सरकार की नहीं, हर घर, हर मोहल्ले, हर फर्द और हर ज़ी-शऊर आदमी की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हमने इस नशे को नहीं रोका तो ये नस्लों को खत्म कर देगा। वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए